Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are doing well. Welcome to the Slate class of Physics A levels. As you know that we have recently started a new series और इस सीरीज में हम A levels के चैप्टर्स को एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करते हैं. ठीक है, आपके लिए चीजें कितनी आसान होगी कि अगर आपने एक चैप्टर के 5 पेपर्स करने हैं तो यू जस्ट वॉच अ सिंगल वीडियो और उस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद यू कैन स्ट्रेट अवे शिफ्ट टू पास पेपर्स. ठीक है, पहले एक चैप्टर को हम 3 या 4 या 5 वीडियोस में कंप्लीट कर रहे थे. नाउ देयर इज अ क्विक रिकैप फॉर यू सो दैट you are exam ready just after watching one video. So student requested कि आप quantum physics cover करें. So in this class we will be completing a chapter. In fact I'll try to complete a whole chapter of quantum physics. है तो lengthy. Now let's straight come to the topic what we study in quantum physics. बच्चों quantum physics में हम ये पढ़ते हैं कि एटॉमिक लेवल पे सब एटॉमिक लेवल पे न्यूटोनियन फिजिक्स जो है वो फ्लॉप हो जाती है. Particles and energy start behaving something differently, right? So energy which is in the form of electromagnetic radiation interact with particles. Those particles are generally electrons. ठीक है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर electromagnetic wave have particle nature or you call it particulate nature, right? Each fragment of energy of electromagnetic radiation is referred as a photon, and each photon has fixed amount of energy. Its energy is quantized, right? जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी फोटोन की एनर्जी भी ज्यादा होगी एंड वेवलेंथ के साथ फोटोन एनर्जी का इनवर्स रिलेशनशिप होगा, राइट? सो come to the topic. It's written here that energy carried by electromagnetic radiations exists in the form of discrete or quantized packet of energy, and each packet of energy is referred as a photon. Now, अब जितनी भी electromagnetic radiations हैं, each single radiation is an individual photon, right? And it has discrete amount of energy. Now let's define photon. बच्चों photon क्या होता है? It's written here that photon is a discrete quantum of energy or discrete packet of energy in the form of electromagnetic waves, right? आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि यू हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. आपके पास 7 प्रिंसिपल रेडिएशंस होती हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ यू हैव रेडियो, देन यू हैव माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, ultraviolet waves, then you have x-rays and then you have gamma rays, right? बच्चों आपको पता है कि gamma rays की wavelength जो होती है वो short होती है, frequency ज़्यादा होती है और energy भी ज़्यादा होती है. These wavelengths are harmful for our body, right? क्या सीन होता है बच्चों? ये होता है कि जिसकी frequency ज़्यादा उसकी energy भी ज़्यादा. So now you know that energy of a photon is directly proportional to its frequency in hertz. याद रहे कि ये वाला जो एनर्जी का यूनिट है, दिस यूनिट ऑफ एनर्जी इज इन जूल्स बिकॉज the SI unit of energy is joules. So whenever you convert the sign of proportionality into the sign of equality, there comes a constant of proportionality. In this case, the constant of proportionality is h. So the equation becomes E equals hf, where this h is Planck's constant and its value is 6.63 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड. और ये वाली वैल्यू आपको डाटा में गिवन मिलेगी. अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली आप ये मेमोराइज भी कर लेंगे. नाउ you know this is the first formula of energy of photon, that energy of photon in joules is equal to hf, where E is energy, h is Planck constant and f is frequency of that particular photon of what? Of electromagnetic radiation, right? And this is in hertz. Now there's another formula of energy of photon. जरा यहाँ पर ध्यान से देखें. You have this equation that speed of all electromagnetic waves is equal to f lambda, right? Now you know the value of c, speed of light in vacuum. This is 3 to 10 raised power 8 meters per second. So out of this equation, make this frequency subject of the formula. Frequency is coming out to be c over lambda. Now the previous equation was E equals hf. E equals hf. जनाब आप frequency को replace कर दोगे c over lambda, so you will get the second equation which is E equals hc over lambda. Now one equation is E equals hf and the second equation is hc over lambda. आप इन दोनों equations में से कोई भी equation use कर सकते हो.
हाँ, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन है तो आप फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज करो, और अगर आपके पास वेवलेंथ की इंफॉर्मेशन है तो आप सेकंड वाली इक्वेशन यूज करो. नाउ दिस equation is clearly telling us that energy of single photon is directly proportional to frequency, right? And energy of photon at the same time is inversely proportional to wavelength of that particular photon. तो जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, राइट? सो frequency is joules is very large unit to represent energy, so generally the energies are also represented in electron volts. Now what is energy in electron volts? Electron volt is the energy gained by an electron when it is accelerated from rest in vacuum through a potential difference of 1 volt. But so let's assume that you have two parallel plates, right? These are the two parallel plates, and the potential difference between these two parallel plates is 1 volt, right? So I am representing the potential difference between these two plates like this, and this potential difference is equal to 1 volt. Now let's imagine कि जनाब ये आपके पास negative plate है और ये आपके पास positive plate है, and here you have placed an electron. आपने electron को यहाँ पर place किया, right? This electron is at rest, its velocity is 0. ठीक है? What will happen when you will release this electron? This electron will rush towards the positive plate और इसकी electric potential energy इसकी kinetic energy में convert होगी. So in this direction, its electrical potential energy is being converted in its kinetic energy. ठीक है? तो जनाब ये कितनी kinetic energy gain करेगा? जितनी इसके अंदर potential energy stored, and that is equal to VQ. Right? Now, what is the value of voltage? Voltage is 1 volt, and the charge on electron is 1.6 into 10 raised to the power minus 19, and this will give you the value of 1.6 into 10 raised to the power minus 19 joules, right? So the same calculation is given here, and this shows that 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 joules. ये वैल्यू आपको एज डाटा में तो नहीं गिवन होगी, लेकिन आप इस वैल्यू को याद रख सकते हो एज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, राइट? सो वंस मोर, 1 electron volt is a unit of energy, and its value in joules is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 joules, right? Now what is the need to convert energy in electron volts? बच्चों एक फोटोन की एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है? तो जूल इज अ वेरी लार्ज यूनिट टू रिप्रेजेंट इट्स एनर्जी, सो आप उसको जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रिप्रेजेंट कर देते हो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ मच स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी. लेकिन जब आप इक्वेशंस यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हो, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच एफ, या एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, इसमें जब आपने एनर्जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो आप एनर्जी की वो वाली वैल्यू जो है वो जूल्स में ही लोगे. आप एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रिप्रेजेंट तो कर सकते हो, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाली वैल्यू जो है वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, बिकॉज दैट इज नॉट एट ऑल द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी. ऑलवेज जो आपने इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट मस्ट बी इन जूल्स. नाउ here you have a visible light spectrum, and you know that visible light spectrum starts with the shortest wavelength, which is violet, all the way up to the red wavelength. You have violet, you have indigo, you have blue, you have green, you have yellow, orange, and red, right? Starting from the shortest wavelength, you have violet. What is the wavelength of violet light? Violet की wavelength होती है जनाब 400 nanometers. And what is the wavelength of red light? Red is 700 nanometers. Red is 700 nanometers. It is already written here that violet is 400 nanometers and red is 700 nanometers, and nano is 10 raised to power minus 9. तो बच्चों दोनों एक्सट्रीम्स को देखो, आपके पास एक एक्सट्रीम रेड आ रही है, दिस इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और एक एक्सट्रीम वॉयलेट आ रही है, दिस इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. Let's find out the energies of these photons. Why we are finding out these energies? So that we know how to find out the energy of photon. देखो, for red light which has a wavelength of 700 nanometers, you are using the formula E equals hc over lambda. हम यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे?
Why we are not using the first formula which is E equals HF? बच्चों इस वजह से बिकॉज आपके पास यहाँ पर वेवलेंथ की इंफॉर्मेशन डायरेक्ट है, तो आप डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, राइट? So the value of Planck constant is 6.63 to 10 raised power minus 34. Speed of light in vacuum is 3 into 10 raised power 8, and the wavelength of red light is 700 nanometers, and nano is 10 raised to power minus 9. This gives you the energy of red light in joules, which is 2.84 into 10 raised to power minus 19 joules. Now, as I told you कि joules वाली वैल्यू बहुत small आती है because multiplying factor is very small. So what we do is generally we convert these values in electron volts. So how you will convert this value in electron volts? By dividing the value by 1.6 into 10 raised to power minus 19. दोनों multiplying factors cancel out हो जाएंगे. Energy of photon of red light, which has a wavelength of 700 nanometers, is coming out to be 1.76 into 10 raised to power 1.76 electron volts. Similarly, let's find out the wavelength of violet light. तो violet light के लिए क्या करोगे? आप wavelength of violet light यूज करोगे, which is 400 nanometers. इस सारे प्रोसेस के बाद उसकी एनर्जी आ रही है 4.97 into 10 raised to power minus 19 joules. ठीक है, we need to convert it in electron volts. तो आपने इसको electron volts में convert किया by dividing the value by 1.6 into 10 raised to power minus 19, and this value is 303.11 electron volts. So starting off from red all the way up to violet, red has energy of, it's written here, red has energy of 1.76 electron volts and violet has energy of 3.11 electron volts. पर जो इसका मतलब ये है कि विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की जो एनर्जी है दैट रेंजेस फ्रॉम 1.7 टू 1.76 all the way up to 3.11 या 3.11 electron volts, right? So a photon with higher frequency has more energy. Definitely अगर आपके पास UV का या एक्सरे का या गैमा का फोटोन हो, that will have greater energy, right? The concept of packets of energy give rise to a particulate nature of waves, that this packet of energy, this photon is behaving like a particle, right? Particulate nature means each photon will have momentum, right? And energy as well. Momentum of photon is given by the expression momentum equals E over C, where E is energy of photon and C is speed of light in vacuum. You have to memorize this formula of momentum of photon as well. Now come to the basics, which is photoelectric effect. Now we know that this single photon of electromagnetic rays possess certain amount of energy, right? So this energy can be calculated using two formulas, which is E equals HF and E equals Hc over lambda. Now what this photon can do? Bacho, what is photoelectric effect? Photo means photons and electric means flow of electric current. Now what these photons can do is these photons have enough energy to knock out electrons from the surface of metal, right? So photoelectric effect is emission of electrons from the surface of metal. Why metal? Because metal के पास ही free electrons होते हैं, delocalized electrons होते हैं, ठीक है? When photons of certain energy are incident on its surface, जब certain energy के photon इसके ऊपर incident होंगे, वो certain energy कौन सी होती है? बच्चों देखो, अगर एक मेटल ब्लॉक है ना बच्चों, इस मेटल के अंदर पॉजिटिवली चार्ज आइंस भी होते हैं, ठीक है, और बीच बीच में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. दीज आर द डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स पोजेसिंग दिस नेगेटिव चार्ज, ठीक है. और इन पॉजिटिवली चार्ज आइंस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बॉन्डिंग हुई होती है, एंड दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है. तो भाई ये मेटल कह रहा है कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स मुफ्त में नहीं नॉकआउट हो जाएंगे, इसके बॉन्ड्स बने हुए, इसकी मेटालिक बॉन्डिंग बनी हुई है, राइट. सो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन आएगा, सिर्फ वही फोटोन जो है इन इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवा सकता है, राइट. नाउ एवरी मेटल हैज डिफरेंट वैल्यू
जिस पर फोटोन एमिट होता है, एंड दैट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल इज कॉल्ड work function energy. For example, this is metal X and its work function energy is 4 electron volts. ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चों कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का फोटोन आए या उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन आए, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड. उससे कम वाले इंसिडेंट फोटोन में इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, राइट? सो दिस एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू the work function energy which is 4 electron volts, जो कि इस केस में एक assumed value, right? तो इसका मतलब ये है कि energy of photon must be greater than or equal to the work function energy of that particular metal. So it's written here that if electron is to escape the surface of metal, work must be done to overcome the attractive forces. मैंने आपको बताया metallic bonds बने होते हैं. So electron must be given energy. When this energy is in the form of photons, the phenomena is called photoelectric effect. Heat से भी हो जाता है. Those are called thermionic emissions, right? So to emit electron from the surface of metal, the minimum energy of the incident photon must be equal to the certain energy referred as, I have just told you, work function energy. Every metal has different value of वर्क फंक्शन एनर्जी. हर मेटल की डिफरेंट होती है. डेफिनेटली जिसकी वर्क फंक्शन एनर्जी ज्यादा है उससे इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना मुश्किल है, बिकॉज उसके लिए आपको इंसिडेंट फोटोन चाहिए होगा जिसकी एनर्जी भी ज्यादा हो. लेकिन किसी की वर्क फंक्शन एनर्जी कम है तो वो कम एनर्जी वाले फोटोन से भी इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा देगा. सो व्हाट इज वर्क फंक्शन एनर्जी? जो वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ अ मेटल, ये लिखना जरूरी है. यहाँ पर मिसिंग आउट है, आप लिखेंगे work function energy of a metal is the minimum amount of energy of incident photon which is required to emit electron from the surface of metal. The symbol of work function energy is phi and the formula of phi is phi equals hf naught. General formula of energy क्या था? Energy equals hf. तो minimum energy का नाम हो गया है phi और minimum frequency का नाम हो गया है f naught. This gives us the formula phi equals hf naught, right? अब F नॉट क्या है बच्चों? F नॉट इज द मिनिमम एनर्जी, F नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इन फैक्ट ऑफ अ फोटोन विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल. इसका मतलब ये है कि वर्क फंक्शन एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो यू विल राइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. Now, what is threshold frequency? Threshold frequency is the minimum frequency of photon required to emit electron from the surface of metal. अगर फोटोन या इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगी, राइट? सो अगर आप इस टेबल को जरा ध्यान से देखें, सो यू कैन सी दैट डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन एनर्जी. यहां पर आपको सोडियम की वर्क फंक्शन एनर्जी गिवन है. सो द वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 3.8 into 10⁻⁻19 जूल्स. इसका मतलब ये है कि अगर आपने सोडियम के सरफेस से फोटोन को एमिट करवाना है, यू रिक्वायर अ मिनिमम एनर्जी ऑफ 3.8 into 10⁻⁻19, राइट? What will be the value in joules? Sorry, electron volts. The value will be 2.4 electron volts. So सोडियम के सरफेस से अगर आपने फोटोन इंसिडेंट करके इलेक्ट्रॉन एमिट करवाना है तो फोटोन की मिनिमम एनर्जी, बेस वैल्यू ऑफ एनर्जी इज 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. अगर फोटोन एनर्जी 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सोडियम इज 5.8 into 10⁻14 हर्ट्ज. आप इसको इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो. वर्क फंक्शन एनर्जी इज इक्वल HF नॉट. यहां पर आप वर्क फंक्शन एनर्जी सब्स्टिट्यूट करो इन जूल्स बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स. यहां पर आप प्लैंक कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. नाउ डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन एनर्जी. फॉर एग्जांपल सोडियम की कितनी है? 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. द वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज 2.9. Similarly, zinc has 3.6. Then silver is 4.3 and platinum is 5.6 electron volts. इसका मतलब ये है कि इन सब में से
सबसे कम वर्क फंक्शन एनर्जी सोडियम की है और सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन एनर्जी प्लैटिनम की है। सो किससे इलेक्ट्रॉन एमिट करवाना सबसे आसान है? डेफिनेटली सोडियम। और किससे इलेक्ट्रॉन एमिट करवाना मुश्किल है? डेफिनेटली प्लैटिनम, बिकॉज इट हैज ग्रेटेस्ट वर्क फंक्शन एनर्जी, राइट? अच्छा, just asking you a question. Let's suppose you have a photon of energy of 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो बच्चों ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाला फोटोन किन किन मेटल्स में जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवा देगा? ये सोडियम में करवा देगा, ये कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा देगा, और ये जिंक के इलेक्ट्रॉन में को एमिट करवा देगा। इन 3 मेटल्स में फोटो एमिशंस हो जाएंगी, और बाकी में फोटो एमिशंस क्यों नहीं होंगी? बिकॉज उनकी वर्क फंक्शन एनर्जी जो है वो फोटोन एनर्जी से ज्यादा है, राइट? तो इसका मतलब ये है कि फोटोन एनर्जी अगर वर्क फंक्शन एनर्जी से ग्रेटर होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगी, राइट? यहां पर देखिए, फॉर कैल्शियम वर्क फंक्शन एनर्जी इज गिवन एज 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और जूल्स में दिस वैल्यू इज 4.6 into 10 is power minus 19 joules, right? So the corresponding value of threshold frequency is 7 into 10 is power 14 hertz. तो कैल्शियम के लिए आप सर्च करें, yes this value is 7 into 10 is power 14 hertz. अब होगा क्या बच्चों? इस डायग्राम को देखो कि फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं। अगर इन फोटॉन्स की एनर्जी मेटल की वर्क फंक्शन एनर्जी से ग्रेटर या इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड, ठीक है? अगर तो एनर्जी इक्वल है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे, बट दे अपॉन एमिशन दे विल हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर एनर्जी सरप्लस है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ई के मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, राइट? सो the minimum frequency of photon required to emit electron from the surface of calcium is the value of its threshold frequency, which we have just calculated, and this value is 7 into 10 is power 14 hertz, right? Now similarly यहाँ पर threshold wavelength भी find out की है। Now there are 3 cases। बच्चों केस नंबर 1 ये है कि इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो है उस पर्टिकुलर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो क्या होगा? फोटो एमिशन नहीं होगी, राइट? नाउ सेकेंड केस में जो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। इस केस में फोटो एमिशन होगी, लेकिन एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। सिमिलरली इन थर्ड केस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन एनर्जी, तो क्या होगा? डेफिनेटली उसकी एनर्जी भी जो है वो ग्रेटर है। इन दैट केस आपके पास एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और जो सरप्लस ऑफ एनर्जी है वो उसी एमिटेड इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल एक मेटल है, लेट्स सपोज वंस अगेन आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ मेटल एक्स। ये आपके पास एक मेटल एक्स है जिसकी बच्चों वर्क फंक्शन एनर्जी की वैल्यू है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है? अगर इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का फोटोन इंसिडेंट होता है तो फोटो एमिशन नहीं होगी, ठीक है? लेट्स अज्यूम दैट दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन नहीं होगी, ठीक है? अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का फोटोन इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट तो हो जाएगा, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। बट अगर आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का फोटोन इंसिडेंट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट भी होगा, and the surplus of energy will be given to this particular electron in the form of kinetic energy। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी से एमिट होगा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में से कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यूज अप हो गए हैं टू एमिट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल? दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन एनर्जी। कितनी सरप्लस एनर्जी बची? 7 में से 4 यूज अप हो गए, द रिमेनिंग एनर्जी इज 3। सो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट? हमने ये कहा कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी, जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन होगी, उसका पहला काम ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगी, ठीक है? सो कितनी एनर्जी यूज अप हो जाएगी? एनर्जी इक्वल टू द वर्क फंक्शन एनर्जी, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी, रिमाइंडर एनर्जी होगी, दैट विल बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ
EK max, right? So energy that we are providing is equal to HF. ये दो काम कर रही है. पहला and foremost काम is to emit electron from the surface of metal, and that is equal to work function energy, and the remaining energy will be given to that particular electron in the form of EK max, right? So let's assume that you have this graph. मैं आपको यहीं पे बता देता हूं. This is a graph of kinetic energy max against frequency. जरा ध्यान से देखो बच्चों, जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो दो काम कर रही है. वो वर्क फंक्शन एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और रिमेनिंग एनर्जी जो मिल रही है, बच रही है, वो ही उसी इलेक्ट्रॉन को मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. नाउ द क्वांटिटी प्लॉटेड अलोंग y एक्सिस इज EK max. सो लेट्स मेक दिस EK max subject of the formula. मैंने EK लिखा है, this is EK max, right? EK max is equal to जरा इसको सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाए ना. EK max is equal to HF minus phi. थोड़ा सा और रीअरेंज करोगे, EK max is equal to HF plus minus phi. Now we are in a situation so we can compare this equation with the general equation of straight line, which is y equals mx plus c. So y equals mx plus c. What is the quantity you have plotted along x-axis? बच्चों x-axis के along frequency है. The quantity along y-axis is EK max, as you can see here, right? So what does the gradient of this graph represent? बच्चों gradient of this graph is equal to Planck constant, right? And y-intercept of this graph is equal to negative of work function energy, right? For example जनाब, ये आपने ग्राफ स्केच किया है सोडियम के लिए, ठीक है? आपने ये सोडियम के लिए ग्राफ स्केच किया. इस ग्राफ का ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, और आपको लाइन को एक्सट्रापोलेट करना पड़ेगा सच दैट यू हैव वाई इंटरसेप्ट, और इसका वाई इंटरसेप्ट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क फंक्शन एनर्जी. सो इन केस ऑफ सोडियम द वाई इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू सी, विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क फंक्शन एनर्जी. वाई इंटरसेप्ट कितना आएगा? वाई इंटरसेप्ट आएगा -3.8 into 10 raised to power minus 19 is equal to -5. माइनस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा. 5 is equal to 3.8 into 10 raised to power minus 19 joules. ठीक है? What if you want to sketch a graph for calcium? बच्चों जरा ध्यान से देखो, कैल्शियम की जो वर्क फंक्शन एनर्जी है वो सोडियम से हायर है. सोडियम की वर्क फंक्शन एनर्जी is 3.8 into 10 raised to power minus 19. राइट? कैल्शियम की वर्क फंक्शन एनर्जी इज 4.6 इन 10 पावर minus 19. सो इसका मतलब ये है कि कैल्शियम की वर्क फंक्शन एनर्जी ज्यादा है. वर्क फंक्शन एनर्जी फाई इज इक्वल टू HF0. अगर कैल्शियम की वर्क फंक्शन एनर्जी सोडियम से ज्यादा है तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी सोडियम से ज्यादा होगी. तो अगर आपने ये वाला ग्राफ सोडियम का स्केच किया है तो कैल्शियम का ग्राफ कहां पर स्केच होगा? कैल्शियम का ग्राफ थोड़ा सा आगे स्केच होगा, बिकॉज this is the threshold frequency for sodium. The threshold frequency for calcium is going to be a bit greater. So this is the threshold frequency for calcium. So calcium का ग्राफ जो है सोडियम के ग्राफ से थोड़ा सा आगे आएगा. इनफैक्ट आप इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज को भी देख सकते हो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैल्शियम जो है वो सोडियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, राइट? सो इसका ग्राफ थोड़ा आगे से स्केच होगा और ग्राफ जो है बच्चों प्रीवियस ग्राफ के एग्जैक्टली पैरेलल ही होगा. Why? Because gradient is constant, and that constant gradient is, what was the gradient? Gradient was Planck's constant. ठीक है? हाँ, अगर आपने ग्रेडियंट को फाइंड आउट करना है तो मेक श्योर कि यहाँ पर जो एनर्जी का यूनिट है वो जूल्स हो, अदरवाइज जूल में कन्वर्ट कर लो. और अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, फॉर एग्जांपल 10 raised power 14 हर्ट्ज लिखा है, व्हाइल कैलकुलेटिंग ग्रेडियंट आपने इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को इग्नोर नहीं करना है. दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, राइट? सो बच्चों ये ग्राफ्स मैंने दोनों स्केच कर दी हैं. सोडियम का ग्राफ थोड़ा सा पीछे है, कैल्शियम का ग्राफ थोड़ा सा आगे है, और यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यूज भी लिख दी हैं, ठीक है? एंड यू नो दैट देयर वाई इंटरसेप्ट्स आर रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव ऑफ वर्क फंक्शन एनर्जी. इसका सॉलिड कॉन्सेप्ट आपको तब आएगा जब आप इसके पास अटेम्प्ट करोगे. नाउ you can see that both graphs are parallel. Why? Because their gradient is same, and that same gradient is equal to their Planck constant. Calcium has greater x-intercept, ठीक है, in magnitude. Why? Because
calcium has greater work function energy. Note that the rate of photo emission depends on the intensity of photons. जितने इंसिडेंट फोटॉन ज्यादा होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, बिकॉज बिलावल भाई ने कह दिया है कि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है. तो जब ज्यादा फोटॉन्स की बारिश होगी तो पानी आएगा इन द फॉर्म ऑफ बीम ऑफ emitted electrons from the surface of metal, right? Okay. Photoelectric effect provides us evidence of particulate nature of electromagnetic waves. बच्चों, electromagnetic waves are waves. They show properties of waves like reflection, refraction, diffraction, polarization, Doppler effect, and whatnot. But in this particular case, at this level, they are behaving like particles. ठीक है? Subatomic level पे these waves are showing particulate nature. So here you have a few evidences. For example, first case देखें. Let's suppose take an example of this is a window, glass window, और आप glass window को एक stone hit कर रहे हो. ठीक है? आपके पास जनाब एक स्टोन है और आप इस ग्लास विंडो को हिट कर रहे हो. तो मुझे बताएं कि अगर आप इस स्टोन को ग्लास विंडो की तरफ हिट कर रहे हो तो क्या विंडो ब्रेक हो जाएगी? हाँ, एक सर्टेन वेलोसिटी ऑफ स्टोन पर ये विंडो ब्रेक हो जाएगी. क्या इंस्टेंटली ब्रेक होगी या थोड़ा टाइम लगेगा? वो जो जिस इंस्टेंट पर ग्लास अगर हिट करेगा ये उसी टाइम पर ब्रेक हो जाएगी. सिमिलरली जिस इंस्टेंट पर फोटोन आकर सरफेस ऑफ मेटल पर हिट करता है उसी इंस्टेंट पर इलेक्ट्रॉन भी एमिट हो जाता है. So photo emission takes place instantaneously, which means that there is no time delay between incidence of photon and emission of electron. Second point देखो, अगर आप photo emissions take place only if the frequency of incident photon is greater than a certain frequency, which is the threshold frequency. मैं आपको इसको पार्टिकल बिहेवियर से समझाता हूं कि अगर आप इस बॉल को ग्लास पर हिट कर रहे हो तो जब भी बॉल ग्लास पर हिट करती है क्या हर बारी ग्लास ब्रेक हो जाता है? नहीं बच्चों, अगर बॉल की स्पीड एक सर्टेन वैल्यू या उससे हायर हो तो ग्लास ब्रेक होता है. सिमिलरली यहाँ पर भी फोटो एमिशन तब होगी जब फोटोन की एनर्जी एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा होगी. एंड यू नो दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन एनर्जी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को कहते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थर्ड पॉइंट देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इंक्रीज the electrons are emitted with greater kinetic energy. इसी एग्जांपल से समझाता हूं. जब आप इस बॉल को बहुत हाई स्पीड से ग्लास की तरफ थ्रो करोगे तो ग्लास के जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं वो दूर दूर तक जाकर गिरेंगे, बिकॉज दे विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. इसी तरह जब फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. एंड द लास्ट पॉइंट इज फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए इफ द इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स इज इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, ज्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, विच मींस दैट द रेट ऑफ फोटो एमिशंस विल इंक्रीज. याद रखना, बताया था ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, राइट? सो बच्चों, बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइड्स अस एविडेंस ऑफ पार्टिकुलेट नेचर ऑफ वेव्स की पार्टिकल नेचर. सिमिलरली इस सब एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल्स ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग लाइक वेव्स, right? So this phenomena is called wave particle duality. Particles की wave वाली properties, waves की particle वाली properties, right? We have seen that electromagnetic effect provides evidence of particulate nature of waves, while the phenomena such as diffraction and interference of electrons provides evidence of wave nature of particles, right? So here we have electrons which are diffracting and interfering. Electrons क्या हैं? Electrons are particles. Electrons are particles, but if they are diffracting and they are interfering, diffraction और interference किसकी properties हैं? Waves की. इसका मतलब ये है they are waves, but they are showing particle nature. They are showing particulate nature. Sorry, they are particles, but they are showing wave nature. And this is called wave nature of particles. So बच्चों, diffraction of electrons is an evidence of wave nature of particles. होता क्या है बच्चों, जब आप एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक ग्रेफाइट फिल्म से पास करें, वाई ग्रेफाइट फिल्म? देखो, आपने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है दैट ग्रेफाइट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एंड ग्रेफाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ carbon layers, atomic layers, which can slide over each other, right? So this is first atomic layer,
this is second atomic layer and this is third atomic layer, right? And this is the distance between two atomic layers. ठीक है, सो इस डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वन diameter of one atom, which is approximately 10 raised to power minus 11 to 10 raised to power minus 10 meters. ठीक है, तो बच्चों इस गैप के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं तो वो स्प्रेड आउट होते हैं, वो डाइफ्रैक्ट होते हैं, एंड an interesting pattern is seen on a fluorescent screen. Why fluorescent screen? जो fluorescent screen पर जब इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं तो ल्यूमिनेंस प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, राइट? फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होती है. सो ये इलेक्ट्रॉन हिट हुए, rather that all the electrons are hitting at a single point, a very interesting pattern is seen. ठीक है, now these concentric circles are representing interference pattern of electrons, right? Right in the middle एक डॉट आ रहा है, एंड देन यू हैव कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ये रियल इमेज भी आप देख सकते हो. दिस इज व्हाट साइंटिस्ट सॉ ऑन द स्क्रीन. सो दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग इंटरफेरेंस पैटर्न्स. थोड़ा सा आपको एएस का बैकग्राउंड होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां पर होती है जहां पर ब्राइट रीजन आ रहा है. इसका मतलब है ये रिंग्स जो है ये ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन मैक्सिमास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कुछ इक्वेशन माइंड में लेके आओ. डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. ठीक है, तो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा. व्हाट वाज डी? डी वाज अ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, जो कि यहाँ पर डिस्टेंस डी है. ठीक है, एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ डाइफ्रैक्शन, दैट डाइफ्रैक्शन टेक्स प्लेस when the wavelength is approximately equal to the slit size. तो बच्चों ये किस स्लिट से डाइफ्रैक्ट हो रहे हैं? दे आर डाइफ्रैक्टिंग फ्रॉम दीज गैप्स बिटवीन द एटॉमिक लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट. तो बच्चों इसकी वेवलेंथ भी इस ऑर्डर की होनी चाहिए. तो क्या इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ होती है? यस, इलेक्ट्रॉन्स हैव वेवलेंथ. In fact, all the moving particles at small scale have wavelength, and that wavelength is referred as de Broglie wavelength. That is called de Broglie wavelength. So it's written here that ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, आपने ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए भी आ सकता है. सो डायग्राम को भी याद कर लो. The beam of electron is incident on a thin graphite film which act as diffraction grating. As the gap between the plane of atom act as narrow slits, the diffraction pattern, the concentric circles are formed on a fluorescent screen. The electrons, which are particles, are exhibiting diffraction, which is property of waves, right? So this experiment shows the wave nature of particles, right? The nature of wave is diffraction and hence interference, and particles in this particular case are electrons. So if they have wavelength, what is the name of that wavelength? That wavelength is referred as de Broglie wavelength, which was discovered by the scientist Louis de Broglie. What is de Broglie wavelength? You have to memorize the definition, the formula as well. De Broglie wavelength is the wavelength associated with particles in motion, right? So the formula of de Broglie wavelength is equal to h over p, where h is Planck constant and p is momentum of that particular particle. So h over mv भी लिख सकते हो. M is mass and v is velocity of that particular particle. So lambda is de Broglie wavelength, h is Planck constant, m is mass of particle, v is velocity of particle and p is momentum. Right? दोनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं. सारा कुछ स्पीड पे इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा और अब आप लोगों को जरूरत है, तो मैं आपकी जरूरत पूरी कर रहा हूँ, वरना मैं आपको आराम आराम से ही पढ़ाता. ऐसा ही है ना? आपको भी पता है इस बात का. So you have a simple question here that calculate the de Broglie wavelength of electron traveling with speed of 2.6 into 10 to the power 6 meters per second. तो बच्चों simply apply the formula de Broglie wavelength equals h over mv. यहाँ पर Planck constant आ जाएगा, यहाँ पर mass of electron आ जाएगा, जो कि डाटा में गिवन होता है. क्वेश्चन पेपर के शुरू में जो पेजेस होते हैं उसके डाटा में गिवन होता है, एंड v is the velocity. वेलोसिटी आपके पास है 2.6 into 10 to the power minus 6, 10 to the power plus 6. जब आपने ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास de Broglie वेवलेंथ की वैल्यू आई 2.8 into 10 raised to the power minus 11 meters. मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ डाइफ्रैक्शन बताई थी. डाइफ्रैक्शन की कंडीशन थी कि जो वेवलेंथ है वो स्लिट साइज से मैच होनी चाहिए. सो वेवलेंथ का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है दैट इज 10 raised to the power minus 11, और जो स्लिट साइज था दैट वाज द गैप बिटवीन द टू एटॉमिक लेवल्स दैट वाज आल्सो
अबाउट 10⁻⁻11 मीटर। सो इस वक्त स्लिट साइज और वेवलेंथ जो है दे आर कंपेरेबल, उनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैच हो रहा है, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स विल स्प्रेड थ्रू इट, राइट। सो it is very important that to observe the diffraction wavelength must be comparable with the size of slit or the gap. अगर ये गैप और स्लिट जो है इक्वल ना होते तो स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स नहीं होनी थी। द सेपरेशन ऑफ प्लेन्स ऑफ एटम्स ऑफ ग्रेफाइट, भाई ये एटॉमिक लेयर और ये एटॉमिक लेयर, इसके दरमियान जो गैप है, this is of the same order of the wavelength of electron and that wavelength is called, once again दोबारा बता रहा हूं, that wavelength is called de Broglie wavelength। क्या नाम है? de Broglie wavelength। लिखने में de Broglie है, प्रोनाउंस करने में it is de Broglie wavelength। What is continuous spectrum of light बच्चों? सिंपली अंडरस्टैंड करो, जो आपका विबग्योर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, yellow, orange, red. These 7 colors with none of the wavelength missing is called continuous spectrum of light. जो आपकी white light होती है, that is continuous spectrum of light, right? Now, the electron energy levels of atom. Let's take an example of hydrogen. हाइड्रोजन के पास एक न्यूक्लियस है, उसमें बेचारा एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है जो उसको रिवॉल्व कर रहा है। तो आपके नॉलेज में शायद हाइड्रोजन का एक ही वैलेंस शेल होता है, नहीं बच्चों। हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज प्रेजेंट इन द नियरेस्ट शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, बट इसके कुछ और शेल्स भी होते हैं विच आर रिफर्ड एज एनर्जी लेवल्स। दे आर कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स बिकॉज दे हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों वो स्टेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द शेल और यू कॉल इट एनर्जी लेवल विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, राइट। वाई? बिकॉज यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, जितना न्यूक्लियस के करीब रहेगा उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी और वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बट ये E2, E3 और E4 में जाएगा लेकिन वापस रिटर्न करेगा, बिकॉज E2, E3, E4, E5, E6 वो भी इसके शेल्स हैं, वो भी इसके एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन वहां पर इस हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्यों कह रहा हूं बार बार, बिकॉज आपको क्वेश्चन ही हाइड्रोजन का आता है, राइट, हैव ओनली सर्टेन एनर्जीज, दीज एनर्जीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स। तो बच्चों अब आपने शेल के वर्ड को रिप्लेस कर दिया है, शेल इज रिफर्ड एज एनर्जी लेवल, ठीक है। तो आपने हर शेल को एनर्जी लेवल कहना है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी लेवल बिकॉज वहां पर वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस होते हैं, तो न्यूक्लियस की ग्रिप उनके ऊपर अच्छी होती है, राइट। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब सारी स्टोरी ये है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ऊपर एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाते हैं, कब जाते हैं और कैसे रिटर्न करते हैं और कब रिटर्न करते हैं, राइट। एनर्जी लेवल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सीरीज ऑफ लाइंस अगेंस्ट वर्टिकल स्केल। बच्चों यहाँ पर देखो, आपको ये पता है कि जब इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम नेगेटिव होगी, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस में, यू नो फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, जब भी फोर्सेस अट्रैक्टिव होती हैं तो साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का साइन है, सो ये मोस्ट नेगेटिव है। इस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। सो दिस इज इट्स ग्राउंड स्टेट। ये ऊपर वाले लेवल्स पे जंप कर सकता है, दो स्टेट्स आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट्स, राइट। सो हैव अ क्लोज लुक। Energy levels can be represented as series of lines against a vertical scale of energy as illustrated in figure. The electron of hydrogen have any of these energies but cannot have energies between them. तो बच्चों ये जो discrete energy levels हैं ये नेचर ने ही अलॉट किए हुए हैं, इसके अलावा कोई एनर्जी लेवल्स नहीं पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि और एनर्जी लेवल्स क्यों नहीं है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि लेट्स सपोज यू आर क्लाइंबिंग ऑन स्टेयर्स, तो आप इस स्टेप पे स्टैंड कर सकते हो, ठीक है। आप इस स्टेप पे स्टैंड कर सकते हो, दरम्यान में क्यों नहीं स्टैंड कर सकते? आप कहोगे तो स्टेयर ही नहीं है। तो भाई नेचर ने सेट किया है, आप दरम्यान में लेविटेट नहीं कर सकते। हाँ, आप इस स्टेयर से इस स्टेयर पे जाते हुए आप मिड से गुजर सकते हो, लेकिन वहां पर स्टे नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो लेवल्स हैं दोज आर जस्ट लाइक स्टेयर्स, इलेक्ट्रॉन्स उन लेवल्स पर स्टे कर सकता है
लेकिन उसके अलावा यहाँ पर स्टे नहीं कर सकता, यहाँ से गुजर सकता है, राइट। अब जब भी एक्साइटेड स्टेट में होगा वो न्यूक्लियस से उतना अवे जाएगा और वहां पर अनस्टेबल होगा। सो दीज आर एनर्जी लेवल्स जिनकी एनर्जी रिड्यूस होती जा रही है, इनफैक्ट इंक्रीज होती जा रही है, बिकॉज इसके साथ माइनस साइन है, तो इसका मतलब है कि इन लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज अनस्टेबल, राइट। सो हैव अ क्लोज लुक। ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे कब गया बच्चों? एज यू कैन सी कि डायग्राम 2 में इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके गया है, ठीक है। और ये जंप करने के लिए एनर्जी कहां से आई बच्चों? एक फोटोन आया जिसकी एनर्जी वाज एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू शेल्स, विच इज हायर एनर्जी, विच इज 3.4 माइनस लोअर एनर्जी विच इज -13.6। सो आप इस एनर्जी को कैलकुलेट करो, -3.4 minus 13.6, this energy is coming out to be 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि एक ऐसा फोटोन आया जिसकी एनर्जी एग्जैक्टली एनर्जी डिफरेंस के इक्वल थी, और इलेक्ट्रॉन ने वो वाला फोटोन अब्सॉर्ब कर लिया और उसको यूज अप करके, उस एनर्जी को यूज अप करके वो E1 से E2 पर जंप कर जाता है और ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। ये यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए स्टे करेगा, वी डोंट नो व्हाट इज दैट टाइम। उस थोड़ी टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, बिकॉज वो हॉलीडे करने गया था, पार्टी करने गया था। आप भी तो सारा साल पार्टी करते हो, ठीक है। तो जब ये वापस आएगा तो जो इसने फोटोन अब्सॉर्ब किया था एग्जैक्टली वही वाला फोटोन एमिट बैक करेगा और वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अपॉन एमिशन ये कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट बैक करेगा? जो अब्सॉर्ब किया था, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट। सो इसके लिए जो पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं वो ये सारी आपके सामने लिखी हुई हैं। इट्स रिटन दैट सो आफ्टर शॉर्ट टाइम, यू डोंट नो व्हाट इज दैट टाइम, the electron will return to its lowest energy level by losing energy. It does so by emitting the photon whose energy is exactly equal to the energy difference. In short, जो photon absorb किया था वही photon emit back करके इसने ground state पर वापस आना है। The energy HF of emitted photon is given by the formula energy is equal to HF, which is equal to the difference of energies of two electron energy levels. जैसा कि हमने ये फाइंड आउट किया था, दिस वाज कमिंग आउट टू बी 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी को आपने जूल्स में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.63 into 10 is power minus 18 जूल्स, राइट। और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आप फाइंड आउट करते, दैट वेवलेंथ इज कमिंग आउट टू बी 8.52। इस डायग्राम से आपको बेहतर समझ आ सकती है। मैंने यहाँ पर कुछ एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन शो कर दिए हैं। वाई हाइड्रोजन? दोबारा से बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन ही हाइड्रोजन का आता है। सो दिस इज ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो इससे पॉसिबल ट्रांजिशंस कौन कौन सी हैं? ऑल द पॉसिबल ट्रांजिशंस आर E1 से E2, दिस इज ट्रांजिशन नंबर 1, दिस इज ट्रांजिशन नंबर 2, E4 पे ट्रांजिशन नंबर 3 एंड E5 पे दिस इज ट्रांजिशन नंबर 4। अब अगर इलेक्ट्रॉन जनाब E2 पर पहुंचा हुआ है, जरूरी नहीं कि ये रिटर्न बैक ही करेगा, ये हायर एनर्जी लेवल्स पे भी जा सकता है, कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ेगा तो आगे निकल जाएगा, ठीक है। इसका प्लान चेंज हो गया है। मतलब अगर इसके ऊपर ऐसा फोटोन इंसिडेंट हो जाए जिसकी एनर्जी इस वाले और इस वाले एनर्जी शेल के डिफरेंस के इक्वल हो, तो ये हायर एनर्जी लेवल पर भी जंप कर जाएगा। सो दिस गिव राइज टू द ट्रांजिशन नंबर 6, 7, 5, 6 एंड 7। और अगर ये E3 पर है तो ये E3 से भी आगे जा सकता है। सो जितनी भी इसकी पॉसिबिलिटीज हैं ये आपको मैंने शो कर दी हैं, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन किस ट्रांजिशन के लिए चाहिए? ट्रांजिशन नंबर 4 के लिए, बिकॉज एनर्जी गैप इज मैक्सिमम। और मिनिमम एनर्जी किस ट्रांजिशन में चाहिए? वो है ट्रांजिशन नंबर 10, ठीक है। अब याद रखना कि ये जो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाला शेल है ना बच्चों, इससे ऊपर वाली जितनी भी ट्रांजिशंस हैं दीज आर रिलेटेड टू द ट्रांजिशंस ऑफ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। जैसा कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की जो एनर्जी होती है वो 1.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से या 1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी करती है। दिस इज रेड एंड दिस ग्रेटर एनर्जी इज वायलेट,
ठीक है, तो बच्चों अगर आप ट्रांजिशन नंबर 7 को देखो, दिस ट्रांजिशन इज E2 से E5, तो एनर्जी रिक्वायर्ड is equal to difference of two energy levels, which is E5 minus E2. The value of E5 is minus 0.5 minus the value of E2 is E2 is minus 3.4. यहां से जो एनर्जी चाहिए, this is minus 0.5 minus 3.4. You require a photon of energy 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो, वो विजिबल रीजन में आएगी. वाई? बिकॉज इसकी जो एनर्जी है दैट इज राइट बिटवीन द एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, राइट. सो बच्चों, ऐसे ट्रांजिशन ऊपर गई और यही वापस भी है. इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ दीज फोटॉन्स कुछ लाइट के फोटॉन्स भी हैं. कौन से वाले? ये वाले. इसका मतलब ये है कि अगर आप व्हाइट लाइट इंसिडेंट करोगे तो उसके कुछ फ्रैगमेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स, कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ्स हाइड्रोजन के एटम्स अब्सॉर्ब कर लेंगे, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल्स टू हाई एनर्जी लेवल्स, और अपॉन एमिशन ऑफ दीज फोटॉन्स वो वापस अपने लोअर एनर्जी लेवल्स पे आ जाएंगे. ठीक है, सो डायग्राम शोज ऑल पॉसिबल ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द हाई एनर्जी लेवल्स बाय absorbing a photon whose energy is exactly equal to the energy difference of two energy levels, right? तो व्हाट इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? बच्चों, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये होता है कि अगर आपने हाइड्रोजन के क्लाउड के ऊपर व्हाइट लाइट को इंसिडेंट किया, हाइड्रोजन के क्लाउड के ऊपर व्हाइट लाइट को इंसिडेंट किया, तो हाइड्रोजन का क्लाउड वो सर्टेन वेवलेंथ्स को अब्सॉर्ब कर लेगा जो कि उसके लिए रिक्वायर्ड है टू जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल. ठीक है, तो जब व्हाइट लाइट बाहर आएगी, पॉप आउट होगी, उसमें वो पर्टिकुलर वेवलेंथ्स मिसिंग होंगी. ठीक है, एंड दिस विल गिव राइज टू द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, राइट. सो जरा इस स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखें. यू कैन सी अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में ऑल कलर्स आर देयर. एंड देन यू हैव दिस हाइड्रोजन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसमें आप फ्यू डार्क लाइंस को देख सकते हो. अगर मैं पॉइंट करूं, देयर आर फ्यू डार्क लाइंस. फॉर एग्जांपल, ये एक डार्क लाइन है, ये एक डार्क लाइन है, ये एक डार्क लाइन है, और ये एक डार्क लाइन है. तो बच्चों, ये डार्क लाइन इस वजह से हैं because these were the particular photons, exactly these were the particular photons जिनकी एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल थी. ठीक है, और विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में फॉल कर रही थी. तो इलेक्ट्रॉन्स ने ये पर्टिकुलर वेवलेंथ्स अब्सॉर्ब की और जंप कर दिए फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल. लेकिन ये एमिट बैक भी तो हुई, but they were emitted back in random directions, right? Similarly, you can see some bright lines on a dark background, and this is called emission spectrum. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल पे गए थे, उन्होंने वापस ग्राउंड स्टेट पे भी तो आना था ना. कैसे आना था? आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि जो फोटॉन्स अब्सॉर्ब किए थे वही फोटोन एमिट करने के बाद वापस आना है. तो ये फोटोन जब एमिट हुए, ठीक है, तो एग्जैक्टली वही फोटोन थे जो हाइड्रोजन ने अब्सॉर्ब किए थे, एज वी कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम एज वेल. ठीक है, तो वही वाले फोटोन को एमिट बैक करके वापस आएगा. इसका मतलब ये है अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम व्यू विद फ्यू डार्क लाइंस इज कॉल्ड अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ये डार्क लाइंस वो वाली वेवलेंथ्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ने पास थ्रू होने नहीं दी, हाइड्रोजन क्लाउड ने पास थ्रू होने नहीं दी, बिकॉज हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए थी. किस काम के लिए चाहिए थी? टू जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल बाय अब्सॉर्बिंग दीज पर्टिकुलर फोटॉन्स. ठीक है, एंड अपॉन डी एक्साइटेशन जो फोटॉन्स अब्सॉर्ब हुए थे, एग्जैक्टली वही फोटोन एमिट बैक हुए, राइट. सो अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है बच्चों कि फोटोन इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड. ठीक है, ये देखिए अब्सॉर्ब फोटोन है, एंड इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल. ठीक है, तो एरो ऊपर की तरफ आता है बिकॉज बाय अब्सॉर्बिंग दैट पर्टिकुलर फोटोन, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू हाई एनर्जी लेवल. एंड एमिशन स्पेक्ट्रम में ये होता है कि जो फोटोन अब्सॉर्ब किया हुआ था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल में गया था, वही वाला एग्जैक्टली फोटोन एमिट बैक करना होता है. सो इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक टुवर्ड्स द लोअर एनर्जी लेवल. सो अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होता है ऊपर जा रहा है बाय अब्सॉर्बिंग द फोटोन, और एमिशन स्पेक्ट्रम में एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है बाय एमिटिंग दैट पर्टिकुलर, एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर फोटोन. ठीक है, सो दिस गिव्स यू
दिस डिटेल ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। वीडियो पॉज करके डिटेल पढ़ लेना, पास पेपर कर लेना, एग्जाम में ग्रेड आ जाएगा। अगर आप मुझसे दोबारा मिलने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझसे आखिरी बार मिल रहे हैं तो बाय।